Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiv Shakti Study Mind. Today we are going to discuss about central idea of the poem A Tiger in the Zoo, which is a very important chapter in class 10's poetry. There will be a very much chance of its coming to your board examinations this year. So be patient and be polite and be attentive to attend the class. Watch the whole video and you will get what the poet is saying about the poem and in which scenario it is written. This will get you a very good idea about what is the theme of the poem. The main theme of the poem or the central idea of the poem is the backbone of any good poem. So when you are writing the central idea of the poem, be very generous, and if you want, you can write in your own words. For that, we are going to discuss the central idea with very easy and attractive words with very calmly. So be with us to the last of the video and you will find it's very helpful for the board examinations of this upcoming year. First, let's discuss about the poet who wrote the poem. After that, we will discuss about the poem's central idea. A Tiger in the Zoo is written by Leslie Norris. He is a well-known prize winner, Welsh writer. He is a well-known prize winner, Welsh writer. He wrote poems as well as the short stories. Many of the short stories collections and poems has won the prizes in the writing area. So it is one of his best poems, A Tiger in the Zoo. He went to a zoo and oversizes a tiger's activity there, and after that he went to the jungle and studies the activities of the tiger there. After that he wrote the poem, and keeping mind that thing in his scenario, he wrote the poem, and that becomes the central idea of the poem. Now let's discuss the central idea of the poem. The central idea of the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris is that wild animals should be allowed to live in their natural habitats. Any type of wild animals, they should be allowed to stay in their natural habitats, because the poem compares the life of a tiger in captivity to its life in jungle, and conveys the message that all living beings, not just humans, love freedom. This is the central idea of the poem. This is the shortest, smallest and wealthiest way to discuss or write the poem. If you want to get success, you can read the central idea and memorize it, and after that you will get to good view of the poem. Clear? अगर हम बात करें इस पोएम की, तो इस पोएम को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है. किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने लिखा है. वह एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे. कैसे विद्वान थे? जिन्होंने कई सारी पोएम्स को और शॉर्ट स्टोरीज को इंग्लिश में लिखा है. उनको इन पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत से प्राइजेस भी मिले हैं. इस पोएम में उन्होंने ये कहा है कि
कोई भी जंगली जानवर हो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट्स मतलब जो उसका मूल निवास स्थान है वहां पर उसे रहना चाहिए। वहां पर रहकर ही वो अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को कर सकता है, क्योंकि उन्होंने एक जू को विजिट किया, उसमें उन्होंने एक टाइगर देखा जो जू में रह रहा है, किस तरह से रह रहा है, उसके पास न कोई पावर है न कोई वो एक्टिविटी कर रहा है, एक जगह पड़ा रहता है, उसको खाना बाहर से दे दिया जाता है, वो खा लेता है। ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की और इसी के साथ साथ वो जंगल में गए, वहां देखा उन्होंने कि लॉयन इज द किंग ऑफ and the tiger is the king of the jungle. He performs many things there in the free atmosphere. जहां पर खुले में जगह में रहकर बहुत सारे वर्क्स को वहां पर वो कर रहा है और इन अकॉर्डिंग्स टू एक जू में पिंजरे में कैद होकर। तो इस सबको ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ये पोएम लिखी। इसीलिए इस पोएम का मेन थीम या सेंट्रल आइडिया ये है कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हमेशा खुले में रहने देना चाहिए, जहां पर उनका निवास स्थान है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर उनको रहने देना चाहिए। मतलब जंगल के हैं तो जंगल में ही रहने चाहिए। पोएट ने पोएम में कंपेयर किया है किसको, उसके लाइफ को जब वो जंगल में रहता है उससे और जब वो जू में बंद है उससे। पोएम अगर पढ़ेंगे आगे, पोएम में ये दिया हुआ है ऑलरेडी कि जब वो दोनों जगहों पर रहता है तो उसके बाहर जब रहता है तो उसके पास बहुत सारी पावर होती है, वो जंगल का किंग होता है, अपनी मर्जी से सारे काम करता है, कब कब कैसे क्या करना है ये वो खुद डिसाइड करता है। मगर जब वो जू में है तो जू के जो कर्मचारी हैं यानी हम ह्यूमंस, हम उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। उसके पास कोई पावर नहीं है, हम बाहर से उसे खाना देते हैं, बासी खाना, उसको फ्लैश क्योंकि वो मांस खाता है तो बाहर से जो खाना दिया जा रहा है वो हम खा रहा है, उसको बासी 2 दिन 4 दिन पुराना भोजन दे रहे हैं। जबकि बाहर जब वो रहता है तो अपनी मर्जी का मालिक है, कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है वो अपने आप डिसाइड करता है। यहाँ हम जो देंगे वही उसे खाना पड़ता है और भी बहुत सारी डिफिकल्टीज उसको जू में रहते हुए ऑब्जर्व करनी पड़ रही है। बाहर जब वो चाहे जहां चाहे जैसे घूम सकता है। तो इसके बाद उन्होंने इससे वो मैसेज देना चाहते थे। क्या मैसेज था कि चाहे सिर्फ मनुष्यों को ही स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है, जो भी जानवर हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं इस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, सबको फ्रीडम की जरूरत पड़ती है, सभी को फ्रीडम अच्छी लगती है। यही आपके इस पोयम का मेन थीम है। आई होप मैं क्लियर हूंगा अपनी बातों में। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हो, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारी बातें क्लियरली आपके माइंड में सेटअप हो रही हो, तो आप प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कंटेंट्स को पूरा का पूरा वीडियो देखिए। आपको बहुत सारी चीजें हम और भी प्रोवाइड करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके जो और भी सिनेरियोज हैं उसको कंप्लीट करेगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा किया करें, जिससे हम आपके दिए गए सुझावों पर अमल करके अपने वीडियोस को और अच्छा बना सकें। लाइक और शेयर करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना यूट्यूब हमें प्रमोट करेगा और हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ले आने का प्रयास ऐसे ही करते रहेंगे। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।